Warm greetings to you all. Research Culture Society is a government-registered scientific research organization. Society is working for research community at the national and international level to impart quality and non-profitable services. Our members are scholarly educationists from various universities and institutes of repute. Here the faculties, research scholars and students interested in the area of research are given guidance and support in how their work can contribute to the betterment of our present and future generations. Research Culture Society is conducting conferences, seminars, symposiums, workshops, training and development programs on different themes. Society has organized nearly around 40 conferences, seminars, symposiums successfully at national and international level in association with different educational institutions and published selected research papers as journal special issues and book proceedings. Society is running international level referred, peer-reviewed journals with ISSN and books publication with ISBN. Educational institutions, colleges, universities are being welcomed for Memorandum of Understanding and collaboration to organize events. Society is promoting and sponsoring educational events as well as publishing research work in collaboration. Society also offers membership. The journals associated with Research Culture Society referred, indexed and with high impact factor. Society journals are publishing research papers, articles in all fields and subjects related to sciences, health sciences, engineering, agriculture, pharmacy, commerce, management, social sciences, arts, humanities, education, law and life skills. Research Culture Society also publishes book in both print and online with ISBN. It will also be a co-sponsor for organizing conferences and seminars. Research Culture Society also provides print and online book publications with ISBN. Society invites book publication in all study subjects and categories, thesis converted into book and conference proceedings publication also available. राष्ट्रीय कार्यशाला 7 दिन की एक अनवरत यात्रा पर हम जो चल रहे हैं, 7 दिनों के लिए हम साथ हैं और इसके आज चौथे दिन चतुर्थ पड़ाव पर मैं आज सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत करती हूं कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मुख्य वक्ता के रूप में टाइम्स स्कूल ऑफ मीडिया, बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा से डॉक्टर संजय वर्मा जुड़े हैं। वे मीडिया विशेषज्ञ हैं और टाइम्स स्कूल ऑफ मीडिया, बेनेट यूनिवर्सिटी में सहायक आचार्य के तौर पर काम कर रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है सर। डॉक्टर संजय वर्मा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर। हम आपके वक्तव्य से आज लाभान्वित होंगे। साथ में हम डॉक्टर कुंजन आचार्य जो पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष हैं मोहनलाल सुखड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से, उनको भी हम सुनेंगे। कल भी हम उनके वक्तव्य से हम लाभान्वित हुए थे। उन्होंने बड़े पर्दे की कुछ बहुत ही व्यावहारिक और अनुभव के से कुछ बातें अपने साथ शेयर की थी और आज फिर वो छोटे पर्दे की बात लेकर हमारे साथ सम्मिलित रहेंगे। मैं डॉक्टर कुंजन आचार्य सर का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज का विषय है डेली सोप अर्थात धारावाहिक कार्यक्रमों के पारिवारिक प्रभाव। जो हमारी टेलीविजन की दुनिया है
बहुत छोटा सा एक बॉक्स जो हमारे घर में आ गया है और उसने हमें देश दुनिया से जोड़ दिया। और यह जो टेलीविज़न की क्रांति हुई, उसके बाद में जो डेली सोप यानी कि धारावाहिक सीरियल बनने लगे, जो प्रतिदिन प्रसारित होते हैं, उनका क्या प्रभाव हमारे परिवार और समाज पर पड़ रहा है, उनसे समाज और परिवार किस प्रकार से प्रभावित होकर सकारात्मक नकारात्मक दिशाओं में अग्रसर हो रहे हैं, उन सब विषयों पर चर्चा करेंगे आज के इस सत्र में। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ और सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर संजय वर्मा सर को कि वे अपना वक्तव्य प्रदान करें। डॉक्टर संजय वर्मा सर। पहले सिर्फ हमारे पास में एक सरकारी चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, लेकिन उसके बाद कई सारे प्राइवेट चैनल आए। पहले उसका जो 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 उद्देश्य था वो था जनता का जानकारियों से लैस करना। उसके बाद धीरे धीरे मनोरंजन की तरफ बढ़ा है टेलीविजन, फिर इंफोटेनमेंट, दोनों ही चीजें शामिल हुई। तो आज जब हम टेलीविजन सीरियल्स यानी कि डेली सोप या धारावाहिकों की बात करने जब बैठे हैं तो ये सवाल उठता है कि अब कितने लोग हैं जो असल में टीवी देखते हैं। कहा जाता है कि इस समय तो देश में करोड़ों लोगों के पास स्मार्टफोन है, तमाम उन पर ऐप्स हैं, व्हाट्सएप जैसी चीज़ें हैं जो उन्हें सुबह से शाम तक व्यस्त रखती हैं। उनको जो नई सूचनाएं, खबरें और मनोरंजन चाहिए, वो सब कुछ उनको इंटरनेट से लैस स्मार्टफोन मुहैया करा देता है। बल्कि कहा जाता है कि परिवार की ही परिभाषा इस स्मार्टफोन की वजह से बदल चुकी है। संयुक्त और एकल परिवारों में जो बटी हुई फैमिली है, उसका हाल ये है कि एक छत के नीचे रहते हुए भी परिवार के जितने सदस्य हैं वो शायद ही 24 घंटे में कुछ देर के लिए साथ बैठ पाते हैं स्मार्टफोन की वजह से। ये कोरोना काल से पहले की स्थितियां थी, लेकिन कोरोना काल में एक थोड़ा बहुत तब्दीलियां नजर आई, क्योंकि लोगों को घर बैठकर ही अपने सारे कामकाज संपन्न कराने थे। कोरोना काल से पहले देखें तो सभी के व्यस्त रहने की अपनी अपनी वजह रही हैं। वर्किंग कपल हैं तो सुबह दोनों अपने अपने दफ्तर निकल जाते थे, बच्चों का भी स्कूल रवाना हो जाने का समय हो जाता था। अक्सर ये सभी एक साथ घरों को नहीं लौटते थे। दफ्तर, स्कूल, ट्यूशन से निवृत्त होकर सबकी वापसी अलग अलग समय पर होती थी और सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते थे। बच्चे जो हैं वो अपना ट्यूशन पढ़ाई में व्यस्त होते थे या खेल कूद में व्यस्त होते थे। और बीते करीब 10-15-20 साल से जो हमारे शहर हैं और जो गांव हैं, उनकी ज़िंदगी तकरीबन एक जैसी ही चल रही थी। उसमें गांव भी बहुत ज़्यादा अलग नहीं रहे। जैसे जैसे टेलीविज़न वहां पहुंचा तो उन्होंने एक तरह का साम्य पैदा कर दिया है कस्बों और शहरों की जैसी ज़िंदगी। हालांकि अभी भी खेती बाड़ी का जो वक्त है वो थोड़ा अलग है, लेकिन इसके बावजूद शाम को जो चौपालें लगती थी उस तरह का माहौल अब वहाँ नहीं दिखाई पड़ता है। बहरहाल, जब एक साथ बैठकर परिवार की परिभाषा को साकार और गुलजार करने वाली फैमिली ही नदारद हो गई है, तो हम आखिर किस मुंह से टीवी पर आने वाले सीरियल्स के पारिवारिक प्रभावों की बात करें। फिर भी अ, और शायद यही वजह है कि बीते अरसे में कहा जाने लगा कि हमारे देश में जो हाल रेडियो का हुआ, काफ़ी समय से उसका कोई नाम लेवा और पानी देवा नहीं बचा। उसको एक उजड़ी हुई चीज कहा जाने लगा। कुछ वैसा ही हाल टेलीविज़न और उसके सीरियल का होने वाला। ये बहुत एक आरोप लगता रहा और ये हवाई अंदाजे नहीं है। इसके आंकड़े भी हैं। 2 साल पहले सूचना प्रसारण मंत्री राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने एक बयान दिया था। संसद में इन्होंने कहा था कि टेलीविज़न के जो दर्शक हैं, उनकी संख्या में तेज गिरावट आ रही है और इस उसका असर जो है वो ये हुआ है कि दूरदर्शन को जो उसकी कमाई है, उसका जो राजस्व है, उसको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। लोग स्मार्टफ़ोन मिलने पर जो उसका डिजिटल कंटेंट है, जो फ़ेसबुक, यूट्यूब, ये सब चीज़ें हैं, उसके इतने मरूद हो गए कि उन्होंने टीवी देखना कमोबेश छोड़ ही दिया। पूरा का पूरा जो टीवी का दर्शक वर्ग था, वो डिजिटल मीडिया में शिफ्ट हो गया। अ, इस और डेली सोप जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी तरफ उनका ध्यान कम होने लगा। हम अगर एक वीडियो देखना चाहें, देख पाएँ, मैं उसको सर्च करता हूँ।
एक तरह का वीडियो है अगर आप देख पा रहे हो तो इसमें दिखाया गया है कि एक नौजवान मोबाइल पर फ़ोन पर व्यस्त है और वो टेलीविज़न को देखने से इनकार आपने देखा होगा कि एक तरह से टेलीविज़न को श्रद्धांजलि इस वीडियो में व्यक्त कर दी गई है। असल में टीवी जिनकी वजह से चलता था, ज़्यादातर जो जिन धारावाहिकों की हम बात कर रहे थे, उसके दर्शक वर्ग थे हमारे बुज़ुर्ग और महिलाएँ। वो चूँकि उनकी ज़िंदगी में भी बदलाव आया, शहरों में महिलाएँ कामकाजी हुई हैं, तो जो सीरियल्स का जो जलवा हुआ करता था एक समय में, उससे महिलाओं ने और बुज़ुर्गों ने मुँह मोड़ लिया। अ, जब महिलाएँ कामकाजी हुईं, स्कूल में वो पढ़ाती हैं, रिपोर्टर हैं या कई अन्य भूमिकाओं में घर से बाहर निकल कर काम करने जाती हैं, तो सच में उनके पास इतना वक़्त नहीं है कि वो टीवी देखें। सुबह सुबह, दोपहर, शाम को वक़्त निकाल कर वो अपने पसंदीदा धारावाहिकों को जो देखती थीं, अब उसके लिए उनके पास बहुत वक़्त नहीं बचा। ये हम कोरोना काल से पहले की स्थितियों के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ा-सा परिवर्तन हुआ है, उसकी हम चर्चा ज़रूर करेंगे। लेकिन इस तबके की बात करें, बुज़ुर्गों और महिलाओं, तो इनके बारे में एक ख़्याल था कि जब इनका मन होता है अब, वो अपना स्मार्टफ़ोन निकाल कर उस पर फ़ेसबुक चला लेते हैं या व्हाट्सएप चला लेते हैं और बैन या पाबंदी लगने से पहले टिकटॉक भी इस तबके का बहुत बड़ा सहारा था, ख़ास तौर से महिलाओं, बच्चों का, जिस पर वो लिप सिंक करके अपना वीडियो अपलोड कर लेते थे। लेकिन निश्चित रूप से इस पाबंदी के बाद मनोरंजन और कमाई का ये ज़रिया जो बंद हुआ है, उससे स्मार्टफ़ोन के प्रति जो लगाव था, उसमें ज़रूर कमी आई होगी। बुजुर्गों की बात करें कुछ अरसा पहले के, तो वो भी ये कहते मिलते थे कि टीवी में अब ऐसा कुछ नहीं आता जिसका इंतज़ार किया जाए, जिसकी बाट जोही जाए, उनकी जिसकी राह देखी जाए। गाँव, देहात, कस्बों में बुजुर्गों के लिए टीवी सूचना और मनोरंजन का एक बहुत बड़ा सहारा था एक वक़्त तक। अक्सर वो टीवी पर समाचार और सामायिक विषयों की चर्चा देखा करते थे। लेकिन इधर कई वर्षों से उनकी शिकायत है कि वो इन सब से बोर हो चुके हैं। खासकर जिस अंदाज में टीवी पर खबरों के नाम पर बहस होती है, उससे उन्हें काफ़ी निराशा हुई है। यही नहीं, सीरियल या धारावाहिकों के नाम पर बीते 8-10 सालों में जो टीवी पर आने लगा है, उसमें भी उनकी शिकायत है कि उनको बाँधने वाला कंटेंट नहीं है, उनकी उस तरह की सामग्री नहीं है कि वो तमाम अपने सारे काम-काज छोड़कर टीवी के सामने आसन जमा लें। तो सवाल पैदा होता है कि टीवी का यह हाल वाक़ई है, जो कभी देश में रेडियो का हुआ था? असल में जब 90 के दशक में टीवी के चलन ने ज़ोर पकड़ा था, तो घरों के कोनों में या बालकनी में बड़े-बड़े रेडियो सेट पड़े मिलते थे। कहा जाता था कि रेडियो अब गुज़र गया है, बच्चे उनसे खेलते थे और एक एक कुछ लोगों ने वाक़या अपना शेयर किया था, घटनाएँ शेयर की थी कि उनके घरों में दिवाली के मौके पर जब साफ-सफाई होती थी, तो बेकार पड़े रेडियो से चूहों के पूरे ख़ानदान निकल कर बाहर आया करते थे। कुछ तो ये भी दावा करते हैं कि जब उन्होंने साफ-सफाई में रेडियो को पाया, तो देखा कि चूहों ने और कीड़ों ने रेडियो रेडियो के पुर्जों को काट कर उसे खोखला बना दिया। तो क्या ये हाल टीवी और उसके सीरियल्स का हो गया है? और इस वजह से टीवी सीरियल के कारण परिवार पर असर पड़ने की जो बात हम करना चाह रहे हैं, वो बात बेमानी हो गई है। अ, अगर हम इस साल मार्च के आखिरी हफ्ते से पहले के दौर में ये सवाल पूछते, तो निश्चित रूप से उसका जवाब हाँ होता। लेकिन कोरोना वायरस से पैदा हुई जो महामारी है,
कोविड-19 नाम की महामारी, उससे जो हालात पैदा हुए, उसमें टीवी और उसके धारावाहिकों को लेकर हमारे समाज में एक नया नज़रिया बना है। बदले हालात को देखकर लगा ही नहीं कि टीवी हमारी सोसाइटी से कभी विदा होगा और इसके धारावाहिकों के जो सकारात्मक या नकारात्मक असर की जो बात कही जाती है, वो कभी झूठ साबित होगी। अ, टेलीविज़न की जो शुरुआत हुई थी उसको दूरदर्शन की वजह से काफ़ी लंबे अरसे तक बुद्धू बक्सा कहा जाता था। अ, ये दूरदर्शन का आपने ये लोगो सत्यम शिवम सुंदरम के वाक्य के साथ में अक्सर चलते हुए देखा था। देखा होगा आप में से बहुतों ने और इसके साथ में जो दूरदर्शन की सिग्नेचर ट्यून है, इससे भी आप लोग परिचित होंगे। अगर हम इसको प्ले करना चाहें तो ये एक नॉस्टैल्जिक एहसास हमारे मनों में जगाती है। अ, शायद ये इसको आप सुन पाएँगे। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको रन करें। इसी दूरदर्शन पर जो शुरुआती कार्यक्रम हुआ करते थे, उनमें दूरदर्शन कृषि दर्शन और चित्रहार इस तरह के प्रोग्राम का काफ़ी बोलबाला था। लेकिन जब बुद्धू बक्सा उसको कहा गया था, हालाँकि उतना बुद्धू वो नहीं था। उस समय बहुत जो चर्चित सीरियल थे, चर्चित धारावाहिक थे, उसमें बुनियाद, हम लोग, मालगुडी डेज़ ये बहुत लोकप्रिय धारावाहिक हुए और इनकी वजह से कहा जाने लगा कि देश को मनोरंजन के नए साधन वाक़ई में अच्छे साधन मिले हैं। इनमें ढेर सारे और भी कई सारे प्रोग्राम थे। ये जो है ज़िंदगी है, फ्लॉप शो है, इनको हम कभी भूल नहीं सकते। देख भाई देख, रामायण, मालगुडी, फौजी ये सब आज भी लोग उन सीरियलों को याद करते हैं और इनमें से कई सारे सीरियल हाल में कोरोना काल में वापस लौटे हैं। बहरहाल एक ज़माने में हमारे देश में टेलीविज़न को बुद्धू बक्सा कहा जाता था क्योंकि और इसकी तफ़सील में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसे क्यों बुद्धू बक्सा कहा जाता था। इतना जान लीजिए कि उस दौर में लोगों को मनोरंजन के सिवा दूरदर्शन नाम की चीज़ से कोई किसी और चीज़ की उम्मीद नहीं थी। हालाँकि जिस अरसे में टीवी के लिए उपाधि गढ़ी गई थी, उस दौरान दूरदर्शन का ही एक छत्र राज था और उस दूरदर्शन पर चित्रहार के अलावा कृषि दर्शन, वर्ल्ड दिस वीक जैसे सूचना प्रधारक कार्यक्रम भी आया करते थे। और सबसे ज़्यादा उल्लेखनीय ये है कि जिस देश में टीवी के ज़रिए रोज़ या हफ़्ते में एक एक तय वक़्त पर आने वाले धारावाहिकों के लिए डेली सोप की जो अवधारणा हम आज बात कर रहे हैं, उसको साकार होते हुए उसी दौरान देखा गया था। और अ, उन धारावाहिकों में से कई सीरियल आज आज के सीरियल के बरस रखें तो लगता है कि उस समय का टीवी बुद्धू बिल्कुल नहीं था। इडियट बॉक्स जिसकी वजह से कहा जाता था वो नहीं था। हम लोग की हमने चर्चा की बुनियाद, भारत एक खोज, मालगुडी डेज़, रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण, उपनिषद, गंगा, देख भाई देख, ये जो है ज़िंदगी, नीम का पेड़, तमस कब तक पुकारूँ, एक लंबा सिलसिला है। अ, इनमें से ज़्यादातर आज भी देश की समृद्ध सांस्कृतिक पौराणिक विरासत से परिचित कराने वाले धारावाहिक माने जाते हैं। इनसे देश की जो सांस्कृतिक विविधता है, उसकी झलक मनोरंजन के साथ मिलती थी। इनसे ये भी साबित हुआ कि रामायण और महाभारत धारावाहिक जो थे, वो हमारे भारतीय जनमानस पर इस अरसे से छाए हुए थे, लेकिन टीवी ने उनको और घर-घर तक पहुँचाया। अ, इनकी जो रोचक कथाएँ थीं, उन्होंने लोगों के मन में काफ़ी जगह बनाई।
यही नहीं, इनके जो पात्र थे उसमें राम सीता जैसी भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया जैसे पात्र, उनको भगवान की तरह पूजा जाने लगा। अ, करीब 1987-88 के दौर में जब भारत के हर घर में टेलीविज़न नहीं था, लेकिन जब भी रामायण और महाभारत जैसे सीरियल उस दौरान प्रसारित होते थे, तो ये दावा नहीं है बल्कि ये सच्चाई है कि पूरे मोहल्ले के लोग उस एक घर में जमा हो जाते थे जहाँ टीवी मौजूद था, हुआ करता था। उस समय रामायण का लोगों के दिलो-दिमाग पर ऐसा जादू था कि जब इसका प्रसारण होता था, तो ऐसा लगता था कि शहर और कस्बों में कर्फ्यू लग गया है, सड़कें खाली दिखा करती थी। ये पहली बार ऐसा था इतिहास में, भारत के इतिहास में खास तौर से, मनोरंजन के इतिहास में यहाँ के, कि जब लोग अपने आराध्य देवों को टीवी पर देख रहे थे। इसलिए सीरियल को देखकर लोग भावुक भी हो जाते थे। उस दौरान दूरदर्शन का ऐसा जलवा था कि समाज में सिर्फ हिंदू नहीं, बल्कि मुसलमान, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने रामायण को टीवी पर देखा था। आमजन इस तरह के सीरियल से इतना कनेक्ट हो गए थे कि जब सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और सीता कहीं सड़कों पर निकलते थे तो लोग उनकी पूजा करते थे। हनुमान का किरदार दारा सिंह और रावण का किरदार अरविंद त्रिवेदी ने निभाया, इनके साथ भी वैसा ही होता था। ये टीवी की ताकत थी जिसने घोर कलयुग में साधारण इंसानों को भगवान की पूजा जैसी साधारण इंसानों को भगवान जैसी पूजा का हकदार बना दिया था। कुछ लोग कह सकते हैं कि आज से 30-33 साल पहले दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले इन धारावाहिकों का जलवा इसलिए कायम था क्योंकि तब इनके मुकाबले में कोई प्राइवेट टीवी चैनल नहीं था। ये बात काफ़ी हद तक सही कही जा सकती है क्योंकि उस समय ना तो स्टार था, ना सोनी था, ना कलर्स, जी टीवी इस तरह के चैनल नहीं थे, ना इनके प्रोग्राम थे। दावा करते हैं कि अगर मुकाबला होता तो शायद असलियत का एहसास होता। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ है कोरोना काल में कि जब मार्च में लॉकडाउन हुआ तो दूरदर्शन समेत तमाम प्राइवेट चैनल जब टेलीविज़न सीरियलों की शूटिंग बंद हो गई, तो पुराने सीरियल ही उनके काम आए। लोग सारे टेलीविज़न चैनलों ने पुराने स्टॉक की तरफ नज़र दौड़ाई और इन सीरियलों का प्रसारण शुरू किया। इसे हम कह सकते हैं असली मुकाबले का दौर, जब हमारे सामने कई सारे पुराने सीरियल एक बार फिर से शक्तिमान हमें देखने को मिला। हमें देख भाई देख देखने को मिला, चाणक्य की शुरुआत हुई, सुरभि नहीं देखने को मिला है लेकिन बाकी कई सारे सीरियल, कृष्णा को हम देख पा रहे हैं। माला-माल अस्पताल आजकल दूरदर्शन पर आ रहा है। बहरहाल ये जो हम असली मुकाबले के दौर की बात कर रहे हैं, तो कायदे से दूरदर्शन पर रामायण शुरू होने के बाद जो 2 पीढ़ियाँ पैदा होकर बालिग हुई हैं, इन 2 पीढ़ियों ने सबसे पहले दूरदर्शन पर आने वाला रामानंद सागर का सीरियल पहले नहीं देखा था। ये इसका मौका उनके पास लॉकडाउन में ही हुआ, जब लॉकडाउन के दौरान ऐलान किया गया कि दूरदर्शन रामायण, महाभारत आदि सीरियल्स का प्रसारण करेगा। उस समय जब ये ऐलान घोषणा की जा रही थी, तो लोग पूछ रहे थे कि क्या ये सीरियल दर्शकों पर पहले जैसा जादू चला सकेंगे? क्योंकि प्राइवेट चैनलों के आने के बाद से रामायण और महाभारत को अलग-अलग तरीके से कई कोशिशें की गई थी। सोनी पर, स्टार पर इनके आधुनिक संस्करण दिखाने की कोशिश हुई थी, जो ग्राफिकली बहुत अच्छे थे, लेकिन वो सारे सीरियल उतना जलवा नहीं दिखा सके जो रामानंद सागर के रामायण का था। लॉकडाउन की घोषणा के बाद दूरदर्शन के मुकाबले को अगर हम देखें तो सारे चैनल मैदान में थे। अ, इसका आकलन करें कि बाजी किसने जीती, तो इसको लेकर कोई विवाद नहीं है कि दूरदर्शन पर इस दौरान रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा जैसे धारावाहिक एक बार फिर सभी पर भारी पड़े। कह सकते हैं कि ये जीत सिर्फ दूरदर्शन और रामायण की नहीं है, बल्कि हमारा जो आज का विषय है, डेली सोप का पारिवारिक प्रभाव, यानी कि रोज़ाना प्रसारित होने वाले टेलीविज़न के धारावाहिक, उनका परिवार पर असर, उसके बारे में एक ये सकारात्मक टिप्पणी है। क्योंकि सुबह-शाम जब इनका प्रसारण हुआ, तो ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत रहे कि लॉकडाउन की स्थितियों में जब हमारी ज़िंदगी थमी हुई थी, ज़िंदगी की आपाधापी में कुछ विराम लगा हुआ था, तो यही टीवी सीरियल एक बार फिर परिवारों को एक जगह पर लाने और एक साथ बैठकर सूचना, ज्ञान, मनोरंजन हासिल करने की उनकी इच्छा को जगाने में सफल रहे। बीते करीब साढ़े 4 महीनों में हमें ऐसा कोई शख्स शायद ही दिखे जिसने इन सीरियलों की कुछ कड़ियाँ किसी वजह से छूट जाने पर अफ़सोस ना जताया हो।
हम जब बात करते हैं इस संदर्भ में टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट यानी कि टीआरपी की, इस पर अगर देखा जाए, इस पैमाने पर देखा जाए और इसके आंकड़े खंगाले जाएँ, तो लॉकडाउन की अवधि में दूरदर्शन को आप सबसे ऊँची पायदान पर पाएँगे। क्योंकि इसी दौरान इस इनके इनके मुकाबले का कंटेंट देने वाला कोई दूसरा प्राइवेट चैनल मैदान में तकरीबन नदारद ही देखा। यहाँ तक कि जब दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण थमा, तो उसे सोनी पर दोबारा दिखाने की पहल की गई। ऐसा नहीं है कि निजी चैनलों के पास कंटेंट का अभाव था या उनके पास ऐसे निर्माताओं की कोई कमी थी। असल बात यह है कि हजारों साल से जो एक परंपरा के रूप में राम कथाओं और लीलाओं के मंचन का पौराणिक और मिथकीय पात्रों की जो छाप हमारे दिलो दिमाग पर पड़ी है, उससे बाहर बाहर निकलना शायद हमारे लिए संभव नहीं। अगर हम कहें कि डेली सोप यानी रोजाना के धारावाहिकों का चलन रामलीलाओं और तमाम तरह के नाटक और कथाओं के मंचन की परंपरा हमारे देश में सदियों पहले जो शुरू हुई थी, तो वहीं से ये टेलीविज़न सीरियल उनकी नींव पड़ गई थी। माध्यम अलग था, लेकिन नींव पहले वही थी। टीवी के डेली सोप असल में इसी कड़ी की सबसे ताज़ा तरीन घटना कह सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई सारे सीरियल जो नए ज़माने के सीरियल हैं, जिनमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप देख सकते हैं, सारा भाई वर्सेस सारा भाई देख सकते हैं, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल ये देख सकते हैं। इनको लेकर भी कई सारे सवाल पैदा होते हैं। इनको देकर पूछा जाता है कि क्या ये हमारे परिवारों पर सकारात्मक या नकारात्मक कोई असर ऐसा डाल रहे हैं? असल में जो सवाल है ये कि नकारात्मक या सकारात्मक है डेली सोप का असर, तो हम इसका आकलन कर सकते हैं उसके दर्शक वर्ग से, यानी उन सारे सीरियल को देख कौन रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं या युवा, इनमें से कौन उसका सबसे बड़ा दर्शक वर्ग है। टेलीविज़न और मोबाइल यानी स्मार्टफ़ोन का बेसिक फ़र्क अभी तक यही है कि टीवी परिवार के साथ यानी सामूहिक तौर पर देखे जाने वाला मीडियम है, जबकि स्मार्टफ़ोन और लैपटॉप को हम एकल व्यूअरशिप के मीडियम के तौर पे देखते हैं। यानी उसका जो दर्शक है वो एक एकांत में बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति है। वो बच्चे भी हो सकते हैं, युवा भी हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं। ये प्रस्थापनाएं असल में तब भी नहीं बदली है जब टीवी स्मार्ट हो गए हैं। आजकल ऐसे टीवी बाजार में आते हैं जिन पर आप इंटरनेट से आने वाला कंटेंट आसानी से देख सकते हैं। उन पर नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, इसके अलावा कई सारे जो सीरियल नए मैक्स प्लेयर हैं, इनके ज़रिए आप देख सकते हैं। इस सारी ये जो प्रस्तावनाओं की हमने बात की, टीवी के स्मार्ट होने के बावजूद नहीं बदली। यानी कि बक्से की तरह दिखने वाला जो टीवी है, वो चाहे स्लिम एलईडी हो जाए या डिजिटल टीवी हो जाए या इंटरनेट के ज़रिए वो सारा कंटेंट उस पे आ जाए जो स्मार्टफ़ोन पे देखते हैं। लेकिन परिवार को साथ लाने में जो बुद्धू बक्सा काम करता था, वो ये स्मार्ट टीवी नहीं करते हैं। सबसे पहले इस प्रसंग में हम बच्चों की बात करेंगे। बच्चों की बात इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे आज भी कार्टून सीरियल्स के कार्टून शो के शौकीन माने जाते हैं। उनके लिए शिनचैन, ओगी एंड द कॉकरोचेस, छोटा भीम, जंगल बुक, मोगली, डोरेमोन, निंजा हथौड़ी, ये सब टीवी पर आने वाली बच्चों के लिए राहतें हैं। शहरी बच्चों में हालांकि अब थोड़ा सा चलन बदला है। वहाँ पर मोबाइल गेम जो स्मार्टफोन पर आते हैं, पबजी जैसे गेम है, उनका क्रेज काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो समस्या पैदा हुई है, वो पैदा हुई है टीवी के रियलिटी शोज़ की, जब हम टेलीविज़न धारावाहिकों की बात करते हैं। इन्हें लेकर हमारे समाज और सरकार कई चिंताएं प्रकट कर चुके हैं, कई ऐतराज भी जता चुके हैं। जो डांस पर आधारित रियलिटी शो होते हैं, बच्चों को लेकर जो बनाए जाते हैं, उन्हें लेकर हमारा जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है, वो कई सारे दिशा निर्देश एडवाइजरी जारी कर चुका है। उसमें उन्होंने कहा है कि निजी चैनलों को छोटे बच्चों की नृत्य प्रतियोगिताएं कराने में उनके मानसिक और शारीरिक विकास को ध्यान रखना चाहिए। मंत्रालय कह चुका है कि रियलिटी शो में बच्चों को जो डांस करते हुए दिखाया जाता है, मूल रूप से वो नृत्य वयस्कों द्वारा बड़ी उम्र के दर्शक वर्ग के लिए कराया जाना चाहिए। ये गलत प्रभाव की बात है। ऐसे डांस छोटे बच्चों से कराने पर उनके जो
मेंटल ग्रोथ है, जिनका जो मानसिक विकास है, उस पर गलत असर पड़ सकता है। ये चिंता सूचना प्रसारण मंत्रालय की भी थी और समाज की भी रही है। मंत्रालय की एडवाइजरी में बहुत साफ कहा गया था कि निजी उपग्रह टीवी चैनल, केबल टेलीविजन निर्माता, इनका जो अधिनियम है, नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995, उसके तहत निर्धारित कार्यक्रम और विज्ञापन के लिए बनी नियमावली, उनके प्रावधानों का पालन करना चाहिए। उसकी उम्मीद सूचना प्रसारण मंत्रालय करता है। ये नियम कहते हैं कि टेलीविजन चैनल पर कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं आना चाहिए जो बच्चों की भदेस या अभद्र छवि पेश करता हो। निश्चित रूप से बच्चों के कार्यक्रमों में नैतिक मूल्यों का लिहाज जरूर रखना चाहिए। उसकी भाषा ऐसी हो कि वो सौम्य हो, उसके दृश्य ऐसे हों जो स्वच्छता का ख्याल रखें, किसी भी तरह से हिंसा को प्रमोट करने वाले दृश्य उनमें नहीं होने चाहिए। इसी तरह छोटे बच्चों से इस तरह का कोई आयोजन नहीं करना चाहिए जो वयस्क दृष्टिकोण के हिसाब से बनाया गया हो। इसलिए लगता है कि ये मांग गलत नहीं है कि टीवी के जो डांस रियलिटी शो हैं या इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, उसमें अगर बच्चों को अभद्र तौर पे या अनुचित तौर पे पेश किया जाता है, तो वो गलत है, वो गलत असर छोड़ता है। असल में ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट यानी नकारात्मक प्रभाव है जो परिवारों पर रियलिटी शोज छोड़ते हैं। लेकिन इन्हीं में कई डांस और सिंगिंग, गायन के ऐसे कई शो हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि कई बच्चों को कम उम्र में चमकने का मौका ऐसे शोज की वजह से मिला। कुछ नाम इस बारे में कहे बताए जाते हैं, जैसे अविका गौर हैं, जिन्होंने बालिका वधू में काम किया था, वो टेलीविजन सीरियल में। जो डांस रियलिटी शोज हैं, जो गायन के शो हैं, उनमें सुनिधि चौहान है, उनमें नेहा कक्कड़ जैसी प्रतिभाशाली गायिकाएं हैं। बताया जाता है कि ये उन्हीं की देन है। हालांकि ज़्यादातर बाल प्रतिभाएं जो है वो नृत्य और गायन के शोज में ही दिखी। बाकी खेल कौशल दिखाने वाले कार्यक्रमों की टीवी पर कोई जगह नहीं है। जबकि हमारे देश को देखा जाए तो खेलों में आगे आने वाले बच्चों के लिए जगह बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए जिस हम सकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं, तो टेलीविज़न से वो सकारात्मक प्रभाव बहुत कम दिखा है, बहुत सीमित दिखा है। यानी कि जो परिवारों के मनोरंजन और ज्ञानवर्धन की जो बात हम करते हैं, प्रतिभाओं को चमकाने की बात करते हैं, तो हमारी इंडियन टीवी इंडस्ट्री, हमारे भारतीय टीवी चैनल इस मामले में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। बच्चों के बाद अगर हम बात करें महिलाओं की, तो उनके लिए निश्चित तौर पे दोपहर से लेके और काफ़ी देर रात तक कई सारे प्रोग्राम होते हैं। उसमें तरह-तरह के कॉन्सेप्ट खोज कर लाए जाते हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू, हम उसको याद कर सकते हैं कि कैसे उसने शुरुआत की थी। उसके बाद आप देख सकते हैं विदाई प्रोग्राम एक था, बहनें कार्यक्रम था, बेटियां कार्यक्रम था, महिलाओं पर केंद्रित कार्यक्रम थे ढेर सारे। ससुराल सिमर का ये कई सारे कार्यक्रम अभी भी चलते हैं। अ, लेकिन अगर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो अ, महिलाओं को केंद्र में रखकर शुरुआत से अगर हम देखें तो हमेशा महिला केंद्रित प्रोग्राम, महिला केंद्रित सीरियल नहीं बनते थे। इसकी शुरुआत का क्रेडिट, श्रेय हमें दूरदर्शन को देना पड़ेगा, क्योंकि उसने सबसे पहले कुछ अच्छे विषयों पर कुछ अच्छे धारावाहिक बनाए थे। इनमें हम अगर नाम लेना चाहें तो एक धारावाहिक का नाम था उड़ान। इसमें दिखाया गया था कि महिलाओं की जो ताकत है, अगर हम उसको जगह दें तो वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के काम आती है। कुछ मॉडर्न एक सीरियल दूरदर्शन पर एक आता था मॉडर्न सोच वाला, उसका नाम था शांति। शांति में ये चर्चित सीरियल था और इसमें मंदिरा बेदी को काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। लेकिन संभ्रांत और उच्च मध्यवर्गीय महिलाओं की घरेलू कलह भरी जिंदगी को लेकर जो सीरियल बना, वो उसमें सबसे ऊपर निश्चित तौर पे एकता कपूर का सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू था। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट प्रसारित हुए इस हिंदी धारावाहिक को हम भारतीय टेलीविज़न दुनिया का सबसे लंबे धारावाहिकों में शुमार कर सकते हैं। ये सन 2000 से और 2000 के बीच दिखाया गया था और ये भारत का ही नहीं, एशिया का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीरियल था।
यहाँ तक कि पाकिस्तानी अखबारों में इसके चर्चे रहते थे। वहाँ इस तरह की खबरें छपती थी कि वहाँ की महिलाओं की शामें क्योंकि सास भी हुई बहू ने गुलजार कर दी है। ये और इस तरह की खबरें आती थी कि भारत से जब कभी कुछ तनाव होता था तो और वहाँ की टीवी नियामक संस्था पेमरा वो जब इस तरह के सीरियल हमारे सीरियलों पर रोक लगाती थी तो महिलाएं सबसे ज़्यादा शिकायत करती थी। वो कहती थी कि उन्हें ये सीरियल नहीं देखने को मिल रहा है, इससे उनकी ज़िंदगी में काफ़ी खालीपन है। असल में सास बहू की घरेलू ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव हो सकते हैं, इसके दर्शन भारतीय दर्शकों ने पहली बार इसी सोप ओपेरा के ज़रिए ख़ास तौर से महिलाओं ने देखे थे। ये सीरियल भारतीय टेलीविज़न धारावाहिकों के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया एक तरह से। तो इसके बाद स्थितियाँ ये पैदा हुई कि हर दूसरा टीवी सीरियल अ अ, इन्हीं विषयों पर मतलब सास-बहू देवरानी इन्हीं 3-4 विषयों के बीच घूमता रहा। इनमें प्रेमी-प्रेमिका और पति-पत्नी के बीच कभी कोई दूसरी औरत आ जाती है, कभी वो एक पुरुष को पाने के लिए तरह-तरह के खेल करती है, तरह-तरह की साजिशें रची जाती हैं, नायक पर हत्या बलात्कार के आरोप लगा दिए जाते हैं। धारावाहिकों के नाम अगर आप बदल दें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहानी लगभग-लगभग सब में एक जैसी होती है। सभी में एक जैसे पढ़े-लिखे, शरीफ, अमीर संभ्रांत लोग एक से एक घटिया नीच हरकतें करते दिखाई पड़ते हैं और लगता ही नहीं है कि ये हमारे समाज को कहीं से प्रतिबिंबित कर रहे होंगे। निश्चित तौर पे कई बार ये साजिशें बहुत हास्यास्पद लगती हैं क्योंकि ऐसा हर एक सीरियल में जो उसकी हीरोइन है, उसको जासूस दिखाया जाता है। उसको वो अपने प्रेमी या पति को साजिशों से बचाने के लिए सबूत ढूँढने में व्यस्त दिखाई जाती है। कई बार सोचकर हैरानी होती है कि जो काम पुलिस नहीं कर पाती है, वो महिलाएँ वो टेलीविज़न सीरियल की नायिकाएँ कर लेती हैं। निश ये सारे मसाले हैं जो कभी मुंबईया फ़िल्मों का मसाला हुआ करती थी, लेकिन अब उल्टा हो गया है। हमारी कथा वस्तुओं के मामले में फ़िल्में काफ़ी ज़्यादा आगे निकल गई हैं। अब वो वर्तमान समय से जुड़े ऐसे-ऐसे विषय उठा रही हैं कि उसको देखकर हमें अपनी फ़िल्म इंडस्ट्री को लेकर हैरानी होने लगती है, कि कैसे उन्होंने ये सब चीज़ें सीखी हैं, कैसे वो इतना आधुनिक हो गई हैं, कैसे वो समाज को प्रतिबंधित कर पा रही हैं। और यथार्थ के करीब ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच रही हैं। लेकिन इस मामले में टीवी जो है, वो हमारे समाज की सच्चाई से उसका कोई लेना-देना नहीं है। जबकि कहा जाता है कि टेलीविज़न जन शिक्षण का माध्यम है। सच्चाई ये है कि हमारे जो टीवी सीरियल हैं, वो एक तरह के विरोधाभास में फँस गए हैं। उस उस पर जो सीरियल आ रहे हैं, दावा किया जाता है कि वो विशुद्ध मनोरंजन के लिए हैं, इसलिए आप उनसे समाज की भलाई की कोई उम्मीद ना करें। अ, यहाँ तक कि हास्य भी काफ़ी फूहड़ हो गया है। कहीं लगता है कि वो हमें रिलीफ़ दे रहा है। एक आधे सीरियल ऐसे उनका हम नाम ले सकते हैं, जैसे कि कपिल शर्मा शो। लेकिन कई बार उसमें भी कई फूहड़ टिप्पणियाँ हो जाती हैं, उसको लेकर काफ़ी विवाद रहता है। इसी तरह से जो क्राइम के शो हैं, जिसमें सावधान इंडिया है, क्राइम पेट्रोल है, कोड रेड है, सीआईडी है, ये एक तरफ इनके बारे में दावा है कि ये हमारे समाज को जागरूक करते हैं, कैसे अपराधियों से बचा जाए। लेकिन ऐसी खबरें आपने तमाम बार पढ़ी होंगी कि उनसे अपराधियों ने अपराध करना सीखा। उनसे पता लगा कि वो कोई अपराध वो कैसे किया जाए। तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। अ, हालाँकि मैं कह सकता हूँ कि ये अ, जन शिक्षण का जो काम है वो बॉलीवुड ज़्यादा बेहतर ढंग से कर रहा है। इसकी एक आश्वस्ति है मन में क्योंकि कई सारी फ़िल्में हम उनको देखें तो लगता है कि उन्होंने अछूते विषयों को उठाया है। उन्होंने महिलाओं की स्थितियों को बहुत ढंग से उकेरा है। दंगल है फ़िल्म, राजी है, स्काई इज़ पिंक है, ऐसी कई फ़िल्में इस दौरान आई हैं, जिन्होंने ज़रूरी विमर्श जो हमारे समाज के हैं, उनको आगे बढ़ाया है। यहाँ सवाल पैदा होता है कि ये जो छोटे और बड़े पर्दे के बीच में खाई है, वो क्यों ऐसा ऐसा हुआ कि वो खाई बन गई है? इस बारे में आम राय ये है कि फ़िल्में बनाना वित्तीय दृष्टि से काफ़ी जोखिम का काम है, जबकि टेलीविज़न उसकी तुलना में बहुत सुरक्षित माध्यम है। ये एक आम आम बात है और यहीं वो विडंबना हमें नज़र आती है कि वित्तीय दृष्टि से काफ़ी जोखिम काम होने के बावजूद
फिल्में काफ़ी ज़्यादा जोखिम ले रही हैं। वो नए विषयों को उठा रहे हैं, वो हमारे समाज की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं, जबकि टीवी लकीर का फ़कीर बना हुआ है। उसके पास घिसे-पिटे विषयों वाले धारावाहिक हैं, ऐसे रियलिटी शोज़ हैं, ऐसे म्यूज़िक डांस की प्रतियोगिताएँ हैं, जिन्हें बार-बार देखकर हम लोग थक गए हैं। हास्य के नाम पर जैसा कि मैंने कहा कि बहुत फूहड़ किस्म की कॉमेडी होती है, अ, और ज़्यादातर टीवी शोज़ में कोई ताज़गी नहीं है। यही वजह है कि जब लॉकडाउन के दौरान दर्शकों को पुराने मिथकीय पात्रों पर और पौराणिक विषयों पर धारावाहिक देखने को मिले, तो उन्होंने काफ़ी राहत महसूस की। लेकिन जैसे ही इधर अनलॉक की प्रक्रिया में टेलीविज़न सीरियल्स की शूटिंग दोबारा शुरू करने की इजाज़त दी गई है, हम देख सकते हैं कि एक बार फिर से वही रोना-धोना दिखाने वाले घिसे-पिटे सीरियल, ख़ासतौर से जो प्राइवेट चैनल हैं, उन पर नएपन के नाम पर फिर से नज़र आने लगे हैं। हो सकता है कि आप में से कई लोगों को टेलीविज़न के धारावाहिकों में कोई समस्या नज़र ना आए। आप कहें कि टेलीविज़न का जो रिमोट है, वो तो असल में हमारे हाथ में होता है। हम दर्शक चाहें तो तुरंत चैनल बदल सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि टेलीविज़न, जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, परिवार के साथ बैठ के देखने की चीज़ है। अगर उस पर कोई बधिश टिप्पणी सुनाई पड़ती है तुरंत, कोई फूहड़ या अश्लील दर्शाया जाता है, तो बच्चों की मौजूदगी में तुरंत चैनल बदलना संभव नहीं होता है। ऐसा करते समय पूरा माहौल असहज हो जाता है। ये कहना भी फिजूल है कि अब तो लोगों के पास में निजता के नाम पर तीसरा पर्दा है, यानी कि ओवर द टॉप ओटीटी जैसा प्लेटफॉर्म, जिस पर आजकल कई सारी फिल्में गुलाबो सिताबों के बाद से रिलीज हुई हैं। शकुंतला, दिल बेचारा, लूट केस, कई सारी फिल्मों को आजकल लोगों ने देखा है। लेकिन इस मामले में सच ये है कि ओटीटी यानी ओवर द टॉप, जिसको हम स्मार्टफोन पर देखते हैं, उसको टीवी का विकल्प नहीं कह सकते। अगर ऐसा था, तो लोगों ने लॉकडाउन की अवधि में टेलीविज़न क्यों देखा? ओटीटी ओटीटी उस समय भी मौजूद था। मेरा मानना है कि टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाले जो डेली सोप्स हैं, उनके पास एक शानदार मौका है कि वो दर्शकों को कुछ सार्थक चीज़ दें। अगर वो ध्यान में रखें कि टेलीविज़न का जो व्यूअर है, जो दर्शक है, वो कहीं नहीं गया है, बल्कि कोरोना काल में सिनेमाघरों की पाबंदी के चलते टीवी के दर्शकों में इज़ाफ़ा ही हुआ है, तो उनको एहसास होगा कि वो इस मामले में बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। उनको जो टेलीविज़न सीरियल के निर्माता जो और निर्देशक हैं, अगर टीवी के लिए जो प्रोग्राम बनाते हैं, उनको अछूते विषयों पर जनता के मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और कंटेंट को खोज कर लाएँ, और वो दर्शकों को उस ऊब से बचाएँ जो रियलिटी शो और साजिश और भूत-प्रेत कहानियों से के दोहराव के जैसे दर्शक महसूस कर रहे हैं, तो वो एक बेहतर दर्शक वर्ग भी पा सकेंगे, और जो कमाई वो चाहते हैं, वो कमाई भी वो कर सकेंगे। अ, मेरा वक्तव्य धन्यवाद, यहीं तक था। आप में से अगर कोई सवाल पूछना चाहे, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने विस्तार के साथ में बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण से सब चर्चा की है कि किस तरीके से टीवी वर्तमान समय का बिल्कुल वैसी अनिवार्य आवश्यकता नहीं रही है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टेलीविज़न का अस्तित्व है और डेली सोप का अस्तित्व हमारे जीवन में, हमारे समाज और परिवार में बना हुआ है। सर, चर्चा सत्र हम बाद में रखते हैं। पहले हम हमारे आज के अतिथि वक्ता को सुन लेते हैं। डॉक्टर कुंजन आचार्य जी को हमने कल भी सुना था, काफी व्यावहारिक उद्बोधन था उनका, और आज फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर कुंजन आचार्य सर। सर, मैं आपका बहुत अधिक हार्दिक स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में, इस कार्यशाला में, और आपके वक्तव्य को सुनने के लिए सभी श्रोता आतुर हैं। कृपया सर अपना उद्बोधन प्रदान करें। डॉक्टर कुंजन आचार्य सर। डॉक्टर कुंजन आचार्य सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? और अभी संजय वर्मा जी बहुत ही शोधपरक और विस्तृत जानकारी दे रहे थे, शुरुआत से लेकर अभी तक की, मतलब जब दूरदर्शन पर सीरियल आते थे वहां से लेकर और ओटीटी प्लेटफॉर्म तक उन्होंने बहुत सारी बातें कही। छोटे पर्दे ने समाज को कैसे प्रभावित किया, या
बड़े पर्दे ने कैसे प्रभावित किया, इन दोनों चीज़ों पे हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन आज जो है सोप ओपेरा ने समाज को किस रूप में प्रभावित किया और समाज की जो छवि है वो छोटे पर्दे पर किस रूप में दिखती है, उस पे संजय वर्मा जी ने बहुत सारगर्भित व्याख्यान दिया। जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है वो मैं रिपीट नहीं करते हुए कुछ अलग तरह की बात करने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी तो दूरदर्शन को एक रेवोल्यूशनरी तरीके से माना गया था। जब टेलीविजन की शुरुआत हुई तो लोगों ने कहा कि एक ऐसा रेडियो आया है जिसमें फोटो भी दिखता है। तो लोगों में बहुत जिज्ञासा हुई कि ऐसा कौन सा रेडियो है जिसमें फोटो भी दिखता है। अंततोगत्वा दूरदर्शन उस रूप में आया हम सब लोगों के बीच में, और जब ये कमोबेश शहरों में या छोटे गांवों में जहाँ जहाँ पहुँच पाया तो ऐसा कहा गया कि ये समाज को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा। क्यों? क्योंकि इसका कंटेंट बच्चों को बिगाड़ देगा और बड़ों का टाइम खराब करेगा। इसलिए मीडिया ने उस समय इसको बुद्धू बक्सा कहना शुरू किया। इसलिए इसका नाम बुद्धू बक्सा हुआ उस समय, कि ऐसा बक्सा जो लोगों को बुद्धू बना देगा, ये खुद भी बुद्धू है। क्योंकि ऐसा लगा कि ये तकनीक आई है ये कहीं ना कहीं हम सब लोगों को प्रभावित करने वाली है। लेकिन दूरदर्शन ने शुरुआत के दौर में जो सीरियल्स हमें दिखाए थे, जिसमें जिक्र किया था रामायण महाभारत, बुनियाद, हम लोग, बहुत सारे ऐसे सीरियल थे, और इन सीरियल्स ने हमको किसी न किसी रूप में एक नई दिशा देने की कोशिश की थी, समाज को एक नया चिंतन देने की कोशिश की थी। लेकिन कमोबेश ये कहने की जरूरत सब लोगों ने की थी कि ये जरूर लोगों को बिगाड़ेगा, जबकि कंटेंट उस समय बहुत लाख दर्जे बेहतर था आज की तुलना में। और बात करें दूसरे दौर की, ये पहला दौर था टेलीविजन का। दूसरा दौर मुझे याद पड़ता है 1989-90 की बात होगी, जब सैटेलाइट चैनल की शुरुआत हुई थी भारत में। और सबसे पहले एसएल जो ग्रुप है, एसएल ग्रुप सुभाष चंद्रा जी का, जी न्यूज जो जी टेलीविजन नेटवर्क है, सबसे पहले वो आया था। उसके बाद स्टार आया और भी कई सारे चैनल धीरे धीरे आते चले गए। वो जो सैटेलाइट टेलीविजन का जो प्रारंभिक दौर था वो बहुत संक्रमण का दौर था। उस समय न तो कोई रोकथाम की चीज थी, ना उस पर कोई सेंसर की चीज थी, जो मर्जी आए वो चल रहा था। और सबसे पहले जब जी न्यूज ने 1991 में सबसे पहले न्यूज बुलेटिन प्रसारित करना शुरू किया रात को 10 बजे, तो सबसे पहले मैंने आलेख लिखा था कि ये जो है और कुछ बिगाड़े ना बिगाड़े, लेकिन हमारी भाषा को बिगाड़ देगी। क्योंकि वो बुलेटिन पहला प्रायोगिक बुलेटिन था दूरदर्शन के अलावा किसी सैटेलाइट चैनल पर, जो हिंदी और अंग्रेजी में मिक्स था। एंकर पहले 10 सेकंड हिंदी में बोलती थी, फिर 10 सेकंड अंग्रेजी में बोलती थी, फिर 10 सेकंड हिंदी में बोलती थी, फिर अंग्रेजी में बोलती थी। तो मुझे लगा कि ये निश्चित तौर पे हम बच्चों को बिगाड़ेगी ना बिगाड़ेगी, हमारी भाषा को जरूर बिगाड़ देगी। और तब ये कहा गया था कि ये आकाश मार्ग से हमारी संस्कृति पर हमला हुआ है। ये कहा गया था बुद्धू बक्सा है, लेकिन जब सैटेलाइट चैनल आया तब एक नया टर्म गढ़ा गया कि आकाश मार्ग से हमारी संस्कृति पर हमला है, जो हमारे घरों में घुस रहा है। और उस दौर में ये सोप ओपेरा, जिस शब्द का आपने जिक्र किया, ये सर्वाधिक चलन में आया, क्योंकि धारावाहिकों की जो श्रृंखला थी, पहले साप्ताहिक धारावाहिक हुआ करते थे, सप्ताह में एक दिन आता था। लेकिन जब सोप ओपेरा आया, महिलाओं को केंद्रित करके दिन के समय में महिला केंद्रित विषयों को शुरू किया गया। तो उसमें विषय था कि महिलाओं के एंटरटेनमेंट के लिए, जब दिन में भोजन और तमाम कामों से निवृत्त हो जाती है महिलाएं, तो उनको ऐसा कोई मनोरंजक सामग्री पेश की जाए जो हमारे टीआरपी को बढ़ाता हो और हमारी उन जरूरतों को पूरा करता हो जो महिलाओं के विषय से जुड़ी हुई है। तो ऐसे कार्यक्रमों को तमाम तरह की सर्फ, इन सब लोगों ने प्रायोजित किया। तो इसलिए इसका नाम सोप ओपेरा हो गया, क्योंकि ये साबुन बनाने वाली कंपनियां जो है इसको प्रायोजित करती थी। लेकिन मुझे लगता है कि साबुन बनाने वाली कंपनियों ने सोप ओपेरा शुरू तो किया, लेकिन आज हम जब देखते हैं तो उन्होंने साबुन के साथ साथ तमाम मूल्यों को, संस्कृति को और भी तमाम उन चीजों को जो हम कभी कभी शर्म में नहीं कहते हैं, उन सबको भी धो दिया है कपड़ों के साथ में। ये बहुत चिंता का विषय है, हम इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। अब जो हर रोज धारावाहिक आते हैं उनमें कंटेंट चाहिए हर रोज। चूंकि मैंने कल भी जिक्र किया आपको, मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का करीब लंबा अनुभव है, और टेलीविजन प्रोडक्शन, टेलीविजन एंकरिंग, टेलीविजन स्क्रिप्टिंग, इसका भी बहुत लंबा अनुभव रहा है। तो मुझे लगता है कि जो टेलीविजन का जो ताना बाना है वो एंटरटेनमेंट और न्यूज दो हिस्सों में बढ़ गया 1995 के आसपास, 95-96 के आसपास। 96 में सबसे पहले जब डीडी मेट्रो शुरू हुआ था, तब आज तक का छोटा संस्करण शुरू हुआ था, आधे घंटे का, हर शनिवार को।
वो न्यूज़ का एक शुरुआत थी। उसके बाद आज तक फुल फ्लेश शुरू हुआ 96 में, और उसके बाद चैनल पे चैनल शुरू होते गए। और आज तो मजाक के मूड में लोग कहते हैं कि चैनल ले लो या चने ले लो, उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि कंटेंट और चैनल मिक्स हो गया है इस रूप में कि हमें देखना क्या है और दिखाना क्या है उसका कोई पैरामीटर या कोई मापदंड बच नहीं गया। जैसा कि कंटेंट के लेवल पे हम लोग सोचते हैं और बात करते हैं, तो समाज को टेलीविजन ने, छोटे पर्दे ने किस रूप में प्रभावित किया। देखिए, जब इंटरनेट नहीं था, आज तो इंटरनेट हर घर में है, हर जेब में है, तो हम लोग ये समझते हैं कि इंटरनेट ने हमको बहुत सारी चीजें सीखने और समझने को दी है। लेकिन उस दौर में जब छोटे पर्दे पर बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमने नहीं देखी थी जो आना शुरू हुई, तो हम लोगों ने कॉपी किया, बच्चों ने कॉपी किया, महिलाओं ने कॉपी किया। कॉपी कैसे किया? जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा शक्तिमान का। एक बहुत लोकप्रिय सीरियल हुआ था, शक्तिमान, उसका एक सिग्नेचर ट्यून हुआ करती थी, और बच्चों ने उसको बहुत पसंद किया। उसमें एक ऐसा दृश्य हुआ करता था, शक्तिमान जो अपनी चेतना को जागृत करता है तो वह अंगुली घुमा के पूरा घूम जाता है। जो मेरी पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने देखा होगा शक्तिमान, उन्हें याद होगा। उस दौर में आपने सर्वाधिक खबरें पढ़ी होगी, उसमें ये देखा होगा कि बच्चे शक्तिमान की नकल करते हुए छत से गिरे, या कहीं ऐसी जगह गिरे जो मतलब नकल करते हुए गिरे, या जख्मी हो गए या चोटिल हो गए। बच्चे जल्दी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा कहा गया कि शक्तिमान बच्चों को बिगाड़ देगा, जबकि शक्तिमान ने ऐसी चीजें देने की कोशिश की थी जो नए रूप में बच्चों को शिक्षा के तौर पे हो। लेकिन चूंकि उसकी जो स्टाइल थी घूमने की, उसने इसको कॉपी करने की कोशिश की। तो हमारा समाज जो छोटे पर्दे से देखता है वो जल्दी से सीखने की कोशिश भी करता है, सीखने की कम, कॉपी करने की कोशिश ज्यादा करता है। आप देखेंगे कि तमाम तरह के नए सीरियल में कितना फैशन चल रहा है, किस तरह की साड़ी पहननी जा रही है, किस तरह की बिंदी लगाई जा रही है, किस तरह का कॉस्ट्यूम आ रहा है, इसको मध्यम वर्गीय महिलाएं कॉपी करने की कोशिश करती है। तो समाज में सीधे सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। और उनको लगता है कि जो टेलीविजन पे देखा जा रहा है, क्यों ना हम भी पहने, हम भी वैसे ही दिखें। लेकिन जैसा मैंने कल आपको जिक्र किया था, छोटा पर्दा या बड़ा पर्दा बहुत सुनहरा होता है, लेकिन वो तमाम बातें अनछुई रह जाती है जो कि दिखती नहीं है, हम लोगों को पता नहीं होती है। हम अंधाधुंध कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो समाज थोड़ा ग्लैमराइज समाज है, वो उतना समृद्ध और खुले दिमाग का नहीं है जितने हम मध्यम वर्गीय या हम लोग जीते हैं। क्योंकि हम लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो जो समाज है उसको कॉपी करने के चक्कर में हम अपने मूल्यों को भी खो देते हैं। एक नया सीरियल था उस दौर का, जंगल बुक, जिसका जिक्र अभी वर्मा जी ने किया। गुलजार ने उसका गीत लिखा था, जंगल जंगल बात चली है पता चला है। वो बहुत लोकप्रिय सीरियल हुआ, बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन। और मुझे लगता है कि जो आज पोगो या जो कार्टून नेटवर्क और भी तरह के जो चैनल आते हैं, वो पहला एक ऐसा धारावाहिक था जिसने एनिमेटेड सीरियल के रूप में हमारे सामने लाया। अब देखिए कि वो लोग कैसे कॉपी करेंगे इसको, कि कंटेंट हम कैसा दे रहे हैं। गुलजार को पूछा गया कि भाई आपने ये जो गीत लिखा है, इसका सिग्नेचर ट्यून लिखा है कि जंगल जंगल बात चली है पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है फूल खिला है। ये मैंने गुलजार साहब से पूछा, गुलजार साहब से मेरा काम करने का अच्छा अवसर रहा बाल फिल्म समारोह में। मैंने इनसे पूछा, भाई ये आपने चड्डी शब्द का इस्तेमाल ही क्यों किया, कोई और शब्द भी कह सकते थे उसमें। तो उन्होंने कहा नहीं, बच्चे जो होते हैं वो ऐसी चीजों को जल्दी कॉपी करने की कोशिश करते हैं जो उनके दिमाग में रच बसी होती है। और आप देखिए कि जो मंडी हाउस ने भी उस शब्द पे आपत्ति की थी, लेकिन बाद में आप देखिए कितना लोकप्रिय हुआ वो, आज भी बच्चों के जुबान पे चल गया वो। तो बच्चा कॉपी करने की कोशिश करता है वो जो उसके दिमाग में सही तरीके से अंकित हो जाए। ये चाइल्ड मनोविज्ञान है, और यही चीज छोटे पर्दे ने बुनाने की कोशिश की थी। अब आप देखेंगे कि अब जो नया दौर आया है टेलीविजन का, जिसका जिक्र वर्मा जी कर रहे थे बहुत सारे सीरियल में, अब जो नया दौर है वो टेलीविजन में कंटेंट की दृष्टि से गरीबी का दौर है। मुझे लगता है कि इनके पास कुछ कहने को नहीं बचा है, कुछ कंटेंट नहीं है। जैसे कि टेलीविजन के दौर में हम लोग जब न्यूज में काम करते थे, तब मैंने भी कई सारे सीरियल्स का निर्माण किया। हम लोग ये बताने की कोशिश करते थे कि कुछ ऐसा प्रेरणादायक हो, कुछ इस तरह की चीजें हो जो न्यूज भी हो और सीरियल भी हो। उस दौर में जब भूत प्रेत की कहानियां आज तक पे और इंडिया टीवी ने चलानी शुरू की थी, एलियंस की कहानियां चलाना शुरू की थी, तो लोगों में एक ऐसा भय और दहशत के साथ में एक हास्य का बोध भी आता था कि क्या कहानियां हैं। लेकिन जो कहानियों का गणित है वो टीआरपी है, जिसका जिक्र किया अभी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, उसका मैं जिक्र आगे करता हूं। लेकिन ये जो कंटेंट की दृष्टि से मैंने गरीबी का दौर कहा, अब आप देखिए कि अब रियलिटी शो आ गए हैं।
और रियलिटी शो कहाँ से आ रही हैं? ये कॉपी किए जा रहे हैं तमाम पश्चिमी देशों से। एक बिग ब्रदर शो आता है, ब्रिटेन का बड़ा शो है, उसको हमने कॉपी किया। बिग बॉस बड़ा लोकप्रिय शो है, हम सब लोग चाव से देखते हैं, रियलिटी शो है। लेकिन कितनी अश्लीलता है, कितनी अभद्रता है उसमें, उसका कंटेंट क्या वो वाकई समाज को दिशा देने लायक है? मैंने उसके शुरुआती दौर में 2008, 9, 10 में जो उनके सीरीज थे वो मैंने देखे, उसके बाद में मैंने देखना बंद कर दिया। लेकिन आप देखेंगे, मैंने देखा कि ये जो इसमें जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था वो निश्चित तौर पे बहुत आपत्तिजनक हुआ करता था, लेकिन उस पर न तो कोई कंटेंट का कंट्रोल था, ना कोई कहने वाला था, ना कोई सुनने वाला था। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बिकेगा वो दिखेगा, लेकिन उसने समाज को क्या दिया? इसने कोई देखने वाला नहीं था। अब ये जो अश्लीलता है या न्यूडिटी है, इसको लाने में ये बिग बॉस का जो जिक्र बाद में है, मैं जिक्र करना चाहूंगा एक इस सदी की महानायिका है जिसका नाम है एकता कपूर, जिसने समाज को, टेलीविजन के बुद्धू बक्से को एक इस तरह से रेखांकित करने की कोशिश की कि कंटेंट के नाम पे मैं वही बेचूंगी जो इस सीरियल की टीआरपी को ऊंचा करे। और जब उनसे पूछा गया कि आप इस तरह का क्यों करती हैं या क्यों दिखाती हैं, तो उनका सीधा जवाब था, जो समाज देखना चाहता है मैं वही दिखाऊंगी। बालाजी टेलीफिल्म उनकी कंपनी का नाम है, और सबसे पहले जो सीरियल आया था उनका, उसी दौर का जिस दौर का मैं जिक्र कर रहा था, प्रारंभिक दौर में जब सॉप ओपेरा शुरू हुआ था, तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी सबसे पहला सीरियल हुआ करता था, और उसके बाद में कहानी घर घर की। अब आप देखिए रिश्तों का ताना बाना कहाँ से बिखरना शुरू होता है। आप अगर सामाजिक ताने बाने को बिखेरना चाहते हैं तो उस छोटे पर्दे के माध्यम से अपनी कहानियों को समाज की उन मूल्यों पर स्ट्राइक करने की कोशिश कीजिए। जो जिन लोगों ने प्रारंभिक दौर में एकता कपूर के धारावाहिकों को देखा होगा वो जानते होंगे कि किस तरह से उन्होंने मानवीय संबंधों को, या जो आंतरिक संबंध हैं, पारिवारिक संबंध, उनको किस तरह से तोड़ने की कोशिश की थी। जो धारावाहिक की नायिका हैं वो जिससे शादी कर रही हैं उससे तलाक ले रही हैं, तलाक लेने के बाद जिससे शादी कर रही हैं उसका जो बच्चा हो रहा है वो उसको अडॉप्ट कर रहा है। मतलब कौन किसका पति है और कौन किसका बच्चा है उस धारावाहिक में पता नहीं चलता था। अब देखिए कि आप जिन मूल्यों की बात कर रहे हैं उन मूल्यों को समझाने के लिए क्या इस तरह के कंटेंट की जरूरत थी? तो एकता कपूर ने सीधा जवाब हमेशा दिया मीडिया को। उसने कहा मैं आगे भी ऐसा करती रहूंगी क्योंकि मुझे अपने टीवी को बेचना है, क्योंकि मुझे अपना कंटेंट चलाना है। और लोगों ने उसको देखा भी। ऐसा कहा जाता है कि टीवी पे जो चल रहा है वो देखना हमारी मजबूरी है, लेकिन अब तो मजबूरी नहीं है, क्योंकि अब तो आप अपने रिमोट के माध्यम से जितने चाहे चैनल देख सकते हैं। अनवरत चैनल हैं, इतने चैनल जिसको आप जानते भी नहीं होंगे, इतने चैनल जितने आपके डिश पर भी नहीं होंगे। लेकिन क्या इस तरह के धारावाहिक सामाजिक ताने बाने को तोड़ने में, सामाजिक ताने बाने को बिखेरने में एक अहम भूमिका निभाते हैं? ये आप हम सब लोगों को सोचना होगा। एक नए दौर का जो सामाजिक संरचना को बिखेरने का या हम लोगों तक कुछ ऐसा कंटेंट परोसने का जो माध्यम शुरू हुआ है वो आज के रियलिटी शो हैं, जिसका जिक्र वर्मा जी ने किया था। अभी डांस के शो हैं या सिंगिंग के शो हैं, वो शुरू हुए। उनका जिक्र किया, मैं इस तरह के शो की जिक्र करता हूं जिसमें आप हास्य के साथ अश्लीलता परोस रहे हैं। कपिल शर्मा शो मुझे ऐसा लगता है कि आज के दौर का सबसे अश्लील रियलिटी शो से कह सकते हैं। रियलिटी शो नहीं, ये एक इस तरह का हास्य शो है जिसमें अश्लीलता भरी हुई है। आप उसके संवाद में देखिए, हर तरह के द्विअर्थी संवाद हैं, लेकिन फिर भी हम चटकारे लेके मनोरंजक तरीके से उसको सुनते हैं, सराहते हैं, हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक हास्य की चाशनी में लिपटा हुआ शो है। तो ये जो सामाजिक ताने बाने को, सामाजिक संरचना को कई रूपों में प्रभावित करती है, उसकी भाषा प्रभावित करती है, उसका कंटेंट प्रभावित करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी तरह के धारावाहिक हैं। कुछ और भी धारावाहिक हैं जो सोप ओपेरा के साथ साथ नियमित तौर पर चलते हैं, जिसमें भाभी जी घर पर है, जीजा जी छत पर है। आप देखिएगा कि इनके कंटेंट में आपको हास्य की चाशनी मिलेगी, लेकिन स्ट्राइक वहीं पर है, और वो है जिसका मैंने जिक्र आपको कल किया था कि हमारा जो दिमाग में हमारी जो कुंठाएं हैं या जो फ्रस्ट्रेशन है उसको किसी न किसी रूप में टेलीविजन धारावाहिकों में दिखाने की कोशिश करता है। प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि जो मध्यम वर्ग की कुंठाएं हैं हम उसको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे, और वो स्क्रिप्ट में मांगी भी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या वो हमारा फ्रस्ट्रेशन दिखाने के चक्कर में अपनी टीआरपी को बटोर रहे हैं? और टीआरपी कैसे आती है वो भी एक बड़ा विषय है। लेकिन मैं इस पूरी बात को रोकते हुए एक और जिक्र करना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि सारे शो गड़बड़ी हैं या शो, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बेहतर बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, जिसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत बढ़िया पारिवारिक शो है, और असित मोदी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरे परिचित भी हैं, मित्र भी हैं। उनके जो डायरेक्टर हैं ऋषि दवे, मेरे बहुत अनन्य मित्र हैं।
उनकी टीम से मुझे लगातार मुलाकात करने का अवसर मिलता है। वो जब यहाँ आते हैं तो मेरी मुलाकात होती है। उनका ये कहना था कि अगर हमें कुछ देना है तो हम समाज को वो दें जो दूसरे धारावाहिक नहीं दे पा रहे हैं, या वो जो हम लोग कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है टीआरपी के चक्कर में। टीआरपी मिले ना मिले, हम स्वच्छ मनोरंजन करें, स्वस्थ मनोरंजन करें, चाहे हास्य की चाशनी हो, लेकिन मनोरंजन की आड़ में हम कोई अश्लीलता या अभद्रता न परोसें। तो ये जो इशू है, अब अभी जैसा वर्मा जी जिक्र कर रहे थे, लॉकडाउन के दौर में दूरदर्शन जो है वो थोड़ा ऊपर निकल गया। अभी आप देखेंगे कि पिछले सैटेलाइट चैनल के आने के बाद में दूरदर्शन थोड़ा फिसड्डी हो गया था। दूरदर्शन को लोग कम देखते थे क्योंकि दूरदर्शन को वैसा मसाला नहीं है जो लोग देखना चाहते थे। लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि लॉकडाउन के दौरान पूरे 25 सालों में, जब से टीआरपी शुरू हुआ है, 20 सालों में टीआरपी का गणित बाद में चेंज होता रहा। पहले टीआरपी थी, टाइम उसको मापता था, अब बार मापता है इसको। लेकिन जब से टेलीविजन की रेटिंग शुरू हुई, अब तक की सर्वाधिक रेटिंग लॉकडाउन में दूरदर्शन को मिली। इसका क्या कारण है? इसका कारण भी मैं सामाजिक साइकोलॉजी या सामाजिक जो मनोविज्ञान है उसको देना चाहूंगा। आप देखिएगा कि वो जो तमाम धारावाहिक थे वो वापस दिखाए गए। महाभारत और रामायण ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए टीआरपी के। और मुझे लगता है कि इस नए पीढ़ी के नए दौर में कई लोगों को तो पता भी नहीं था कि विभीषण महाभारत का पात्र था या रामायण का पात्र था। अब उनको पता चला देखने के बाद में। तो वो क्योंकि वो दूसरे ऐसे दौर में उलझ गए थे जिन्हें पता नहीं था कि वाकई क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमारा माइथोलॉजी रहा है। तो इन तमाम धारावाहिकों के साथ में बुनियाद, चाणक्य, भारत एक खोज भी ये धारावाहिक साथ साथ आते गए और हम लोग उसको देखते गए। तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो एकता कपूर, बालाजी टेलीफिल्म या कपिल शर्मा जैसे शो से हम लोग ऊब गए थे, नया प्रोडक्शन उनका बंद हो गया था, तो अचानक से लॉकडाउन में घरों में कैद लोगों ने सीधे सीधे तौर पर दूरदर्शन की राह ली और पूरी तरह से इसने टीआरपी को शिखर पर पहुंचा दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि हम वापस अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में जो दबी हुई छिपाए इच्छाएं हैं, हम कहीं ना कहीं हमारा जो दबा हुआ मनोविज्ञान है वो उन चीजों की ओर प्रवृत्त होता है जिसको हम लोग बाधित करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। मेरे जब आज तक की शुरुआत हुई तब मैंने, एक हमारे मित्र हैं आज तक में, बहुत उस समय बड़े पद पे थे, मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों कनॉट प्लेस पे अगर दुर्घटना हो जाती है तो आप 2 लोगों को दिखाते हैं, आप क्यों नहीं दिखाते कि किसी ग्रामीण इलाके में एक बस उलट गई है, 20 लोग मर गए हैं। वो खबर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन आपके लिए वो महत्वपूर्ण होता है कि कनॉट प्लेस पे 2 लोग जख्मी हो गए। तो उन्होंने कहा कि जो टीआरपी है, हम उस सेंटर को कंसंट्रेट करते हैं जिस सेंटर पर लोग देख रहे हैं। अगर वो सेंटर जो देखना चाहता है, जिस सेंटर पर टीआरपी लगी हुई है, मीटर लगा हुआ है, उसी को कंसंट्रेट करते हैं। और यही बात उन तमाम प्रोड्यूसर्स ने कही कि हम उन सेंटर को कंसंट्रेट करते हैं जो बड़े शहरों की मानसिकता को बाधित करती है, बड़े शहरों की मानसिकता को दिखाती है। वही कंटेंट हम दिखाना चाहते हैं। क्यों कंटेंट नहीं दिखाया जाता गाँवों का? क्यों कस्बों का नहीं दिखाया जाता? क्यों महानगरीय बातें कही जाती है? क्योंकि टीआरपी के मीटर वहां लगे हुए हैं। जो टीआरपी जिस चैनल को मिलेगी उसको विज्ञापन ज्यादा मिलेगा, जिसको विज्ञापन ज्यादा मिलेगा उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। तो ये जो पूरी गणित है, ये पूरी अपनी अर्थव्यवस्था की ओर घूमती हुई गणित है। क्योंकि अर्थव्यवस्था की धुरी टेलीविजन को चलाती है और इसी टेलीविजन से हम लोग सीखते, देखते, समझते हैं। लेकिन अब मिशन के रूप में उसे देखना, ये समझना हमारी गलती होगी, क्योंकि वो जो सामाजिक संरचना को देखने की कोशिश करता है वो नहीं होता है जो दिखाना चाहते हैं। वो होता है जो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से अपने एजेंडे को क्लियर करता है। एक जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि पहले जब टेलीविजन आया था तो एक टेलीविजन को देखने के लिए 150 लोग इकट्ठा हुआ करते थे। मुझे याद है कि जब रामायण शुरू हुई थी तब जिस गांव में हम लोग रहते थे, उस गांव में हम लोग जिस घर में हम लोग टीवी देख, उस समय हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करता था, जिसके घर में हम टीवी देखने जाते थे उसके मोहल्ले में तमाम लोग इकट्ठा हो जाते थे, 50 लोग इकट्ठा हो जाते थे और मोहल्ले के सभी लोग झाजम लगाकर टेलीविजन देखते थे। लेकिन आज सामाजिक ताना बाना बदल गया है। आज हर बेडरूम में एक टेलीविजन है। ये कितना बड़ा बदलाव है। एक पूरा गांव टेलीविजन देखता था एक सेट को, और अब एक घर में अगर 6 लोग हैं तो 3 टेलीविजन सेट लगे हुए हैं। लेकिन एक जो बात वर्मा जी ने कही अभी, अब कितने लोग टेलीविजन देख रहे हैं? क्योंकि अब धारावाहिकों के क्रम में रुचि कम होती जा रही है। टेलीविजन हम जब देखते हैं, जब खाते हुए, या जब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं बचता है,
अब जो इशू है वो जो OTT प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, अब हमारे 2.5 दशक पहले जिसको हमने बुद्धू बक्सा कहा था, वो बुद्धू बक्सा हमारे घर के बेडरूम में या ड्राइंग रूम में हुआ करता था, वो बुद्धू बक्सा अब हमारी जेब में आ गया है। और आप देखिएगा कि जो धारावाहिकों के दूरदर्शन या और जो चैनल हैं थोड़ी सी लिहाज जो रखते थे, वो लिहाज भी OTT प्लेटफॉर्म ने खो दी है। अब आप जिन वेब सीरीज को देखना चाहेंगे, जो आल्ट बालाजी हैं, नेटफ्लिक्स हैं, उन तमाम प्लेटफॉर्म पर जो वेब सीरीज आ रही हैं वो अश्लीलता की तमाम सरहदें पार कर चुका है। उसमें वो तमाम चीजें दिखाई जा रही हैं, वो बोली जा रही हैं जिसको हम लोग ग्रुप में बोलना पसंद नहीं करते हैं, जो ग्रुप में बोलना अच्छा नहीं माना जाता है। वो गालियां, वो गंदी बातें, वो हम जो सुनना देखना पसंद नहीं करते हैं। अब आल्ट बालाजी जो एकता कपूर जिसका जिक्र किया मैंने, उसके वेब सीरीज और जो वेब सीरीज है उसका नाम ही है गंदी बात। मतलब आप किस तरह के चीजों को दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी OTT प्लेटफॉर्म पर कोई सेंसर नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो देखने वाला नहीं है तो आप जो मर्जी आए दिखाइए। अभी भी तर्क वही है कि जो लोग देखना चाहते हैं वही दिखा रहे हैं हम तो। और सबसे बड़ी चीज है, टेलीविजन पे 3 चीज बिकती है, एक क्रिकेट, एक क्राइम, एक सेक्स। अगर आदमी इन तीनों चीजों के साथ TRP को जोड़ देता है तो कोई गलती नहीं करता है, क्योंकि तमाम टेलीविजन चैनल यही दिखाते रहे हैं। और OTT प्लेटफॉर्म ने वो तीसरे वाले हिस्से को अब खुले रूप में दिखाना शुरू कर दिया है। तो अब हमें देखना होगा कि ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसको किस रूप में ठीक किया जाएगा। ये जो वेब सीरीज हैं वो किस रूप में ठीक होगी। लेकिन ये बहुत बड़ा मार्केट है जो जेब तक पहुंचता है। आपको बहुत बड़ा आश्चर्य होगा, कल मैंने जिक्र किया था, बड़े अभिनेता जो हैं OTT प्लेटफॉर्म पर अपनी फिल्म रिलीज करते हैं, जिसका गुलाबो सिताबो का मैंने कल जिक्र किया था। अब आप देखिए कि अनुष्का शर्मा लॉकडाउन में बेरोजगार हैं, उन्होंने एक वेब सीरीज बनाई पाताल लोक। ठीक है, उसका कंटेंट ठीक है, अच्छा कंटेंट है, लेकिन और भी जितने अभिनेता अभिनेत्रियां हैं ये इस रूप में यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर पैसा है और वो कंटेंट परोस सकते हैं जो कंटेंट आमतौर पर सेंसर की कैंची से गुजरता है तो रुक जाता है। तो हम और आप लोगों को ये देखना होगा कि ये जो बुद्धू बक्से से लेकर OTT प्लेटफॉर्म तक हम जो आए हैं, ये हमारे समाज को किस रूप में, किस दिशा में ले जाना चाहता है। मैं चूंकि टेलीविजन से जुड़ा रहा हूँ लंबे समय तक, अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, और हर प्लेटफॉर्म पर मैं ये जिक्र करता रहा हूँ अपने मित्रों से कि ये जो हम समाज को क्या देना चाहते हैं, हम समाज को क्या दिखाना चाहते हैं, अगर उसका भी जिक्र होगा तो बहुत बढ़िया बात होगी, क्योंकि हम लोग निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ी को कुछ तो देना चाहेंगे। पिछले दिनों जब मैं इलेक्शन एनालिसिस के लिए ABP न्यूज पर था लंबे समय के लिए, आज तक पे भी रहा, BBC पे भी रहा, मित्रों से ये चर्चा करता रहा कि आप लोग वो कंटेंट क्यों दिखाते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम लोगों के नई पीढ़ी को न दिखाना चाहते हैं हम लोग। लेकिन वही जाव होता है कि प्रोड्यूसर वो चाहता है कि किसी न किसी रूप में TRP बढ़े, किसी न किसी रूप में रेवेन्यू बढ़े। तो अगर हम रेवेन्यू और TRP के पीछे चलते रहेंगे तो हम लोग ये बात भूल जाएंगे कि हमारा समाज छोटे पर्दे से क्या ग्रहण कर रहा है, और जो छोटा पर्दा आप सिमट के हमारी जेब में आ गया है उससे क्या ग्रहण कर रहा है, और हम भविष्य के लिए और किस कंटेंट की ओर जा रहे हैं। हम और आप तमाम बुद्धिजीवियों को ये भी सोचना होगा। तो ये जो समाज है, ये जो सोप ओपेरा है और ये जो हम देखते रहे हैं, वो नए दौर की ओर बढ़ रहा है, इंटरनेट के महासमुद्र की ओर बढ़ रहा है। इस सारे कंटेंट को समझने देखने की जरूरत है, और ये भी समझने की जरूरत होगी कि हम लोग किस रूप में आगे की ओर बढ़ेंगे। मेरी एक रिसर्च स्कॉलर है, अभी इसी विषय पर रिसर्च कर रही है, वेब सीरीज पर ही। इसी को लिया गया है कि किस रूप में वेब सीरीज कंटेंट ले रहा है और किस रूप में कंटेंट परोस रहा है। तो मुझे लगता है कि आप और हम लोग जो रिसर्चर हैं या जो शोधार्थी हैं या जो रिसर्च गाइड हैं, उन लोगों को ऐसे विषय पर काम करवाना चाहिए। हालांकि वेब सीरीज पर और OTT प्लेटफॉर्म पर एक आध रिसर्च हुआ है विदेश में, लेकिन मुझे लगता है कि हमने अभी रिसर्च की शुरुआत की है और जल्दी इस पर नतीजे पहुंचेंगे कि कंटेंट किस रूप में परोसा जाए और समाज को किस रूप में दिशा दी जाए। तो आप और हम लोगों को ये कुछ सोचना पड़ेगा। आज का विषय बहुत रोचक था और वर्मा जी ने बहुत बेहतर बात की। मैंने भी कुछ जो अनछुई चीजें थी उसको संक्षेप में कहने की कोशिश की। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है, और हम लोग फिर कभी मुलाकात करेंगे तो इस पर और चर्चा करेंगे। बाकी जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, अगर कोई सवाल जवाब करना चाहें तो उनका स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही रोचकता के साथ अपने अनुभवों को शेयर करते हुए हमें बताया कि जो बुद्धू बक्सा हैं वो आज इंटरनेट के साथ किस तरीके से सांस्कृतिक और भाषिक अवमूल्यन का जिम्मेदार हो रहा है और हमें किस दिशा में जाने की आवश्यकता है, उस पर सोचने की भी ज़रूरत है। आपने बहुत अच्छे से बताया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
चर्चा सत्र के लिए मैं सभी जो हमारे प्रतिभागी हैं उनको आमंत्रित करती हूँ। अगर किसी के द्वारा कोई प्रश्न उठाया जाना है तो जी, बात कर जी, सकते विदुषी हैं। और जी जी। जी विदुषी जी, जी बिल्कुल मैम, मैं बताइए। डॉक्टर अनीता शुक्ल बोल रही हूँ। संजय जी नमस्कार, और आपको कुंजन आचार्य जी नमस्कार, और आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बड़े ज्वलंत मुद्दे उठाए और बहुत बेबाकी से उन बिंदुओं को रखा जो सच में चिंता है हम बुद्धिजीवियों की और समाज की। मेरा एक ही यहाँ पे, मैं यूं कहूँ कि ये प्रश्न भी नहीं है, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाना चाह रही हूँ कि अब तो कम से कम जब रामायण और महाभारत इस लॉकडाउन में जब फिर से प्रसारित किया गया और उसकी वजह से दूरदर्शन का टीआरपी आसमान पे पहुंच गया, तब तो कम से कम इन प्रोड्यूसर्स को, जैसे एकता कपूर का आप नाम ले रहे थे या दूसरे जितने भी हैं, उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा समाज अच्छा कंटेंट भी देखना चाहता है। जी जी, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। कंटेंट समाज देखना तो चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैंने जो जिक्र किया आपको, छोटा पर्दा बड़ा पर्दा चलता धन से है। कितना इन्वेस्टमेंट होता है उसमें, और हर वो व्यक्ति जोखिम लेने से कतराता है कि कहीं ऐसा न हो कि हम रिजेक्ट हो जाएं। जो रिजेक्शन का जो दर्द है या डर है, वो हमें रोकता है ऐसे कंटेंट को करने के लिए। कहीं ऐसा न हो कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो धरा न रह जाए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट था, ये रामानंद सागर ने आज से 2-3 दशक पहले किया था, और उसको हम लोगों ने इसलिए देखा क्योंकि कहीं ना कहीं वो छूटा रह गया था हमसे। कई ऐसी पीढ़ी जो है वो देख नहीं पाई थी। लेकिन आज का प्रोड्यूसर सिर्फ और सिर्फ टीआरपी देखता है। हालांकि रामायण और महाभारत और कृष्णा कई रूपों में बनते रहे, हालांकि फिल्में भी बनती रही है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके पीछे कहीं ना कहीं जो धन का या जो इन्वेस्टमेंट का जो भय है वो अभी भी बना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है अगर कोई व्यक्ति, कोई प्रोड्यूसर साहस करके तारक मेहता जैसे धारावाहिक को नियमित रखे, या कोई ऐसा धारावाहिक जिसमें कुछ अच्छी चीज दी जाए, तो वो चलेगा निश्चित तौर पे। सिर्फ साहस की जरूरत होगी। हमें देखना होगा कि दूरदर्शन की जो टीआरपी है उसने कितना ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड बनाया इस लॉकडाउन के दौर में। ये अगर साहस कर लेगा तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे हम लोग आगे कुछ ऐसा कंटेंट परोसने की बात कर सकेंगे जो समाज के लिए भी हितकारक होगा और हम आप लोगों के लिए भी हितकारक होगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मोहसिन खान, इस संबंध में थोड़ी विवादित बात कहने जा रहा हूं। मेरा ये कहना है कि जिस तरह से एक आरटीआई पे हम लोगों ने रिसर्च किया कि जो समाचारों की जो गति है वो सूचना के अधिकार के साथ कैसे बढ़ती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि अभी सबसे नया विषय हमने लिया, एक वेब रेडियो पर हमने नया काम शुरू किया था कि अब तक का कोई काम कभी नहीं हुआ वेब रेडियो पर। देश की पहली पीएचडी मेरे निर्देशन में वेब रेडियो पर 2013 में हम लोगों ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संपन्न करवाई। अभी जो नया विषय लिया है, मेरी एक स्कॉलर है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हम लोग काम कर रहे हैं इसी कंटेंट पर, कि इसका जो वेब सीरीज का जो कंटेंट है वो किस रूप में समाज के लिए उपयोगी है, कैसे नहीं है। और जब हम लोगों ने सर्च किया तो अभी तक मुझे कहीं इस